Hello everyone, myself Amit Maurya. Welcome to my new and amazing session. Today we are going to learn about IoT. Okay? Today we are going to learn about IoT. IoT refers to Internet of Things. The Internet of Things IoT refer to system of interrelated internet connected objects that are able to collect and transfer data over a wireless network without human intervention. The Internet of Things describes the network of physical objects, things that are embedded with sensors, software, and other technologies for the purpose of connecting and exchanging data with other devices and systems over the Internet. It enables devices and systems over the internet. It enables devices and to interact, collaborate and learn from each other's experiences just like humans do. Internet of Things refer to system of interrelated internet connected objects that are able to collect and transfer data over wireless network without human intervention. Internet of Things describes the network of physical objects, things that are embedded with sensors, software, and other technologies for the purpose of connecting and exchanging data with other devices and systems over the internet. It enables devices and systems over the internet. It enables devices and to interact, collaborate, and learn from each other's experiences just like humans do. IoT का फुल फॉर्म या इसका पूरा नाम इंटरनेट ऑफ थिंग है और इंटरनेट ऑफ थिंग को शॉर्ट में IoT कहते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग IoT उन उपकरणों का एक समूह है जो इंटरनेट से जुड़े हैं। IoT उपकरणों में वायरलेस सेंसर, सॉफ्टवेयर एक्चुएटर्स और कंप्यूटर डिवाइसेस शामिल होते हैं। वे एक विशेष वस्तु से जुड़े होते हैं जो इंटरनेट के माध्यम से डाटा का ट्रांसफ़र करते हैं। आज टेक्नोलॉजी के नए दौर में IoT डिवाइसेस का इस्तेमाल हर दिन हमारे दैनिक जीवन में किया जा रहा है, जैसे स्मार्टफोन, टीवी, लाइट, AC, डोर, कार इत्यादि IoT सेंसर द्वारा इस्तेमाल करते हैं। अमेजन इको, रिंग, डोरबेल और नेस्ट थर्मोस्टेट ये सब आपके इस इंटरनेट ऑफ थिंग IoT का एक हिस्सा है, लेकिन यह सिर्फ IoT उपभोक्ता उत्पादों तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीक, चिकित्सा क्षेत्र से लेकर कृषि, उद्योग और दूसरे बड़े क्षेत्रों में इस्तेमाल हो रहा है। गार्टनर के अनुसार 2021 तक इंटरनेट ऑफ थिंग को बनाने में 25 बिलियन तक उपकरण का निर्माण हो सकते हैं और 2023 तक इसकी संख्या 3 गुना तक हो सकती है। चलिए हम उदाहरण देखते हैं IoT का। आपकी कार में IoT सिस्टम द्वारा आगे आने वाले रास्ते में ट्रैफिक की पहचान करता है और स्वचालित रूप से व्यक्ति को मैसेज भेजता है, जिससे आप अपना समय बचा सकते हैं। स्मार्ट माइक्रोवेव से जो स्वचालित रूप से सही समय पर भोजन को पकाती है। सेल्फ ड्राइविंग कार जिसके जटिल सेंसर द्वारा उनके रास्ते में ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं। पहनने योग्य फिटनेस डिवाइस जो आपकी हृदय गति को मापते हैं और उस दिन चले गए कदमों की संख्या। फिर इन सबकी जानकारी का
उपयोग करके एक एक्सरसाइज प्लान के बारे में सुझाव भी देता है। ये सब सेंसर की मदद से मुमकिन हो पाता है। हाउ IoT वर्क्स, चलिए हम देखते हैं। An IoT system consists of sensor devices which talk to the cloud through some kind of connectivity. Once the data get to the cloud, software processes it and then might decide to perform an action such as sending an alert or automatically adjusting the sensor devices without need for the user. An IoT system consists of sensor devices which talk to the cloud through some kind of connectivity. Once the data get to the cloud, software processes it and then might decide to perform an action such as sending an alert or automatically adjusting the sensor devices without need for the user. हाउ IoT वर्क्स, चलिए हम देखते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग को आधुनिक टेक्नोलॉजी द्वारा एडवांस बनाया जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग को इस्तेमाल के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट की समान जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि यह एक नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है। कोई भी व्यक्ति इंटरनेट ऑफ थिंग की सहायता से अपने घर की डिवाइसों को इंटरनेट की मदद से एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इंटरनेट ऑफ थिंग की सहायता से अपने घर की डिवाइसों को इंटरनेट की मदद से एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप उन सब डिवाइसेस को कहीं भी नियंत्रण कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल तब भी कर सकते हैं जब आपके मोबाइल और डिवाइस के IP एड्रेस एक साथ उपकरण जुड़े हुए हो। इसके इस्तेमाल करने के लिए उपकरणों को वाईफाई या ब्लूटूथ के माध्यम से आपस में कनेक्ट किया जाता है। अब इन उपकरणों के बीच वायरलेस तकनीकी माध्यम से डाटा अथवा निर्देशों का आदान प्रदान होता है। मशीन तकनीक अथवा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से इस तकनीकी को पूरी तरह ऑटोमेटिक भी किया जा सकता है। इसके लिए इसमें सेंसर का प्रयोग किया जाता है। हाउ IoT वर्क्स में चलिए हम एक उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल। आप अपने घर में कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और किसी आपातकालीन परिस्थिति के कारण आपको बाहर जाना पड़ा और इस जल्दीबाजी में आप अपना कंप्यूटर बंद करना भूल जाते हैं। अपने घर से निकलने के कुछ समय बाद अचानक आपको याद आता है कि आप अपना कंप्यूटर बंद करना भूल गए हैं। इस परिस्थिति में इंटरनेट ऑफ थिंग आपके लिए एक उपयोगी तकनीकी साबित हो सकती है। इंटरनेट ऑफ थिंग के माध्यम से आप जहां कहीं भी मौजूद हो वहां से अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग तकनीक का आपातकालीन परिस्थिति में विशेष योगदान है। यदि किसी मरीज को हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर रखा जाता है और यदि अचानक मरीज का स्थिति बिगड़ने लगे, तब इन परिस्थिति में मरीज की महत्वपूर्ण लक्षण को मॉनिटर करके किसी भी आपातकाल की सूचना तुरंत डॉक्टर तक पहुंचा देती है। इंटरनेट ऑफ थिंग के कुछ एग्जाम्पल है, चलिए देखते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स: स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम्स, स्मार्ट वायरलेस हेल्थ मॉनिटर्स, IoT इन एग्रीकल्चर, स्मार्ट स्पीकर्स, अमेजन इको डॉट, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंस, स्मार्ट स्मोक डिटेक्टर्स, एयर क्वालिटी सेंसर्स, स्मार्ट फायर एक्सटिंग्विशर्स, फूड अलर्ट एक्सटिंग्विशर्स, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट डोर लॉक, सॉइल मॉनिटरिंग,
smart farming equipment, smart factory equipment. These are the examples of IoT. These are the examples of IoT. Okay. थैंक यू टू ऑल. अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें. ओके, थैंक यू टू ऑल.